Molecular mass, mm we have discussed. So what is the meaning of molecular mass? Mass of one molecule of the substance. Okay. And it is always expressed in AMU, not, it is expressed. यार इसमें तो और मेरी राइटिंग नहीं आ रही है. इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन किसमें हमारा AMU. What is the meaning of one AMU? Atomic mass unit. And what is the value of one AMU? 1 AMU is equals to 1 by Na gram, or it is 1.67 into 10 की power minus 24 gram. Okay, na? So yesterday we have discussed about molecular mass. Now we are going for gram molecular mass, GM. Okay, like in the yesterday's class we have atomic mass. Atomic mass is the mass of one atom of any element, and it is also always expressed in AMU. And what is the meaning of gram atomic mass? Sir, the mass of 1 gram of atoms. Mass of 1 gram of atom, no. Sir, the mass of 1 mole of atoms. है ना? What is the difference between AM and GAM? There are two things. AM is atomic mass. It is the mass of one atom of any element. It is always expressed in AMU. Okay, and if you want to express this thing in gram, it will be 10 की power minus 24 multiplied by these things. Okay, but if you are expressing going for gram atomic mass, it is the mass of 1 mole of atom, and it is always expressed in grams. ठीक है ना? Like अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि what is the atomic mass of oxygen, तो you will say 16 AMU. But अगर मैं आपसे बोलता हूँ what is the gram atomic mass of oxygen, it is 16 gram. है ना? Only difference is unit. Atomic mass is in AMU, gram atomic mass is in gram. ठीक है ना? इनिशियली जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम लोग इस चीज पे काफी ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि एटॉमिक मास शुड बी इन AMU व्हाइल ग्राम एटॉमिक मास शुड बी इन ग्राम. बट लेटर ऑन तो हम लोग एटॉमिक मास को सीधे ग्राम ही बोल देते हैं. तो जब तक मोल कॉन्सेप्ट है तब तक वी शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स. मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ one molecule of the substance, and gram molecular mass means mass of 1 mole of molecule of substance. Okay, mass of 1 mole of molecules of substance. And what is the meaning of 1 mole? it is a unit which is used in chemistry, and 6.023. है ना? It contains 6.023 into 10 power 23 particles. So we can also say mass of 6.023 into 10 power 23 molecule of substance. This is the second definition. Or we can also say it is the, है ना, molecular mass expressed in gram. Any of these three definition you can use. The most correct definition is mass of 1 mole of molecules of the substance. तो उसे मुझे AMU में एक्सप्रेस करना है, इसे मुझे ग्राम में एक्सप्रेस करना है ना? तो लाइक अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछूं कि CO2 का मोलेकुलर मास, तो हम CO2 का मोलेकुलर मास कितना बोलेंगे? इट कंटेन्स, व्हाट इज द मोलेकुलरिटी ऑफ CO2? Sir, 12 मोलेकुलरिटी ऑफ CO2, मोलेकुलरिटी 3 है ना? व्हाट इज द मोलेकुलरिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन? 1. विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 2. एंड नाउ इफ वी आर गोइंग फॉर मोलेकुलर मास, तो 12 फॉर कार्बन, 16 2 जा 32 फॉर ऑक्सीजन. तो मोलेकुलर मास में कितना बोलूंगा? 44 AMU. बट अगर मैं आपसे GMM बोल रहा हूं, दैट इज ग्राम मोलिकुलर मास,
तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, है ना, वैल्यू तो सेम रहेगी बट इट विल बी इन ग्राम, तो इट इज 44 ग्राम. Okay, so now our question is you have to calculate molecular mass and gram molecular mass of the following substance. Second is glucose C6H12O6. Third one is your KMNO4. Fourth one is your urea. Fifth one is your Mohr salt, that is FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O. Next one is your sucrose C12H22O11. Next one is our C4H10. Next one is our H2SO4 and last is H3PO4. So please calculate the molecular mass and gram molecular mass of the following. है ना, you also have to remember the name. CO2 का क्या नाम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6 ग्लूकोज, KMNO4 potassium permanganate. It is a very important chemistry reagent. NH2CONH2 urea. FeSO4.NH4 whole twice SO4.6H2 Mohr salt. C12H22O11 sucrose. C4H10 butane, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है ना, अब जल्दी से इनके MM और GMM निकाल. Okay, now it is correct, 180, है ना. So molecular mass is 180 AMU and gram molecular mass is 180 gram. Okay. Now you require the atomic mass of potassium and manganese. What is the atomic mass of potassium? 39 and manganese 55, है ना, मैंगनीज का 55. अब बताओ जल्दी से. Fe मैंगनीज के बाद आता है, उसका होता है कितना, 56. है ना. तो KMNO4 it is 158 AMU and gram molecular mass is 158 gram. Urea it is 60 AMU and for gram molecular mass it is 60 gram. For Mohr salt it is 392 AMU and it is 392 gram. For glucose it is 342 AMU and GMM is 342 gram. For butane it is 58 AMU and here it is 58 gram. है ना, H2SO4 it is 98 AMU and it is 98 gram. And for H3PO4 it is again 98 AMU and it is 98 gram. ठीक है ना. मॉलिक्यूलरिटी को आप एटोमिसिटी भी बोल सकते हो कि पोटेशियम के कितने एटम है इसके अंदर, 1 है ना, इसके अंदर 1, ऑक्सीजन के 4. तो अगर टोटल एटोमिसिटी पूछता है मुझसे तो, है ना, तो एक कॉलम हम लोग अब एटोमिसिटी का भी बना देते हैं, जिससे मैंने कल मॉलिक्यूलरिटी बोला था, तो वी कैन आल्सो से इट एटोमिसिटी, है ना. अगर एटोमिसिटी की हमसे डेफिनेशन पूछता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. तो अब सबकी एटोमिसिटी भी बताओ. CO2 3, 3O2 3, 24, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
39, 45, 14, 7, and H3PO4 it is 8. ठीक है, तो अब एटोमिसिटी, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास में कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। एक बार हम इन्हें कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब हम लोग जाते हैं आपको नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो नाउ इट इज अवर नंबर ऑफ, जैसे कल हमारा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स था, अब आप इसे नंबर ऑफ क्या बोलोगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, और आजकल की जो मॉडर्न प्रैक्टिस है, तो मॉडर्न प्रैक्टिस में चाहे ग्राम मॉलिक्यूल्स हो, चाहे ग्राम एटम्स हो, या तीसरी चीज ग्राम आयन्स हो। ठीक है ना, तीन चीजें हैं हमारे पास, या तो एटम होगा, या मॉलिक्यूल होगा, या आयन होगा। एटम दैट इज द सब्सटेंस which may or may not have free existence, molecule जिसका free existence होगा, and ion कब बनता है, it is formed by losing or gaining of electrons from the neutral substance। ठीक है ना, तो आजकल मॉडर्न प्रैक्टिस में इन तीनों को, चाहे ग्राम मॉलिक्यूल हो, ग्राम एटम्स हो, या ग्राम आयन्स हो, इन्हें हम लोग प्रोनाउंस करते हैं सिंपली मोल। ठीक है ना, बट ग्राम एटम्स और ग्राम आयन्स में अभी भी ज्यादा कन्वेंशनली ग्राम एटम और ग्राम आयन वर्ड चलता है। क्यों, है ना, केवल मैंने ग्राम एटम को एटम बोल दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। इसमें तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स है और इधर क्या वर्ड आ रहा है, मोल वर्ड आ रहा है, तो डिफरेंस होता है। बट आप तीनों को कुछ भी बोल सकते हो, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलो, या सिंपली नंबर ऑफ मोल्स बोलो। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। 2 साल ये फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, है ना। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में हमें जरूरत पड़ती है किसकी, नंबर ऑफ मोल्स की, और मोल्स का फॉर्मूला सिंपल सा है आपका, गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है ना, तो अगर जैसे आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। सपोज करो फर्स्ट आपको गिवन है ना, 9 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में, है ना, जैसे यहां पर लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। गिवन मास, इसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे, W से, और ग्राम मोलिकुलर मास को हम लोग कॉमनली डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो हम लोग सिंबॉलिक रूप में हमारा फॉर्मूला लिख सकते हैं, N इज इक्वल्स टू W बाय M। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना हो, ठीक है ना, तो गिवन मास कितना है मेरे पास, 9 डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास 16 प्लस 2 18, तो 9 बाय 18 इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2, है ना। एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो सबके ऊपर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट करो, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, थर्ड है आपका, है ना, 12.8 मिलीग्राम्स ऑफ SO2, फोर्थ है आपका, है ना, 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4। ठीक है ना, फिफ्थ है आपका 29.4 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। सिक्स दिया है जैसे आपसे 45 ग्राम ऑफ H2C2O4, है ना, इसको 45 की जगह 63 कर दो, .2H2। तो इन सब में जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट,
सेकेंड में 1/5 आ रहा है, बिल्कुल सही। व्हाट इज K2Cr2O7? पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये है KMnO4। आई एम आस्किंग अबाउट K2Cr2O7। पोटाशियम तो कल करा था हमने, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, है ना। ये पोटेशियम और 2 क्रोमियम है बेटा, तो डाई, 2 के लिए डाई आता है और क्रोमेट, है ना, तो इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। है ना, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मास मुझे करेक्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो करेक्ट कैलकुलेट होगा तभी मेरे करेक्ट क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। एक बार मोल्स कैलकुलेट करना सीख जाए, फिर मोल्स को किसमें बदलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स को बदलेंगे किसमें, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब वो हमारे क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। तो इस पहले सबसे पहले मोल्स करेक्ट निकालना आपको कंपलसरी है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ H2C2O4.2H2O? H2C2O4 क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, है ना, इट इज ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और .2H2O तो ऑक्जेलिक एसिड, है ना, डाईहाइड्रेट, 2 वाटर है इसलिए डाईहाइड्रेट हो जाएगा। $90 क्यों, .2H2O भी तो 126 1/, है ना। तो सबके नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालने हैं तो KMnO4 के 31.6/158, दैट इज 1 बाय कितना आपका 5, 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2, सो इट इज 12.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 64, so it will be 2 into 10⁻⁴, है ना। Next is 8 microgram of CH4, so it will be 8 into 10⁻⁶ upon 16, so it will become 5 into 10⁻⁷। तुम्हारा शायद -8 आ गया था, है ना, तो उसे करेक्ट कर लेना। 29.4 ग्राम ऑफ K2Cr2O7, so it will be 29.4 divided by 294, so that is 1/10, and the last number of moles will be 63/126, so it is half, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल अगर गिवन है, सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो ने क्या बोला था, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले रहे हो तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर आपको अब मोल्स पता है तो कैन यू कन्वर्ट द मोल्स इनटू मॉलिक्यूल्स, क्या करना पड़ेगा, उसको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर कभी भी आपको मास गिवन हो और मॉलिक्यूल्स पूछे तो क्या करना पड़ेगा, है ना, मास को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मोल्स में, है ना। कैसे कन्वर्ट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। अब मोल्स को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, जितने भी मोल्स आ रहे हैं n इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, Na से, विच इज अवर एवोगैड्रो नंबर, है ना। रिवर्स भी हो सकता है, अभी मैं उस तरह की प्रॉब्लम करवाऊंगा पहले जिसमें आपको मास गिवन होगा और निकालना क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। रिवर्स टाइप की प्रॉब्लम क्या होंगे, जिसमें मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे और मास, तब क्या करोगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये रिवर्सिबल हो जाता है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग द डबल एरो, कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स पता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को आप क्या कर दो,
Na से डिवाइड कर दो तो आप किस में आ जाओगे, मोल्स में। फिर आप मोल्स से वापस किस में जाना चाहते हो, मास में। जब मास को मोल्स में बदलना था तो मोलर मास से क्या करा आपने, डिवाइड करा। अब अगर मोल्स को मास में बदलना है तो आप उसे मोलर मास से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। और एक बार मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा आपके पास, फिर आप उसको एटम्स में कैसे बदलोगे, सर वो 6.02 जैसे नहीं, एटम्स में। मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं आपके पास, नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कैसे बदलूंगा, सर है ना। अपने पास मॉलिक्यूल है तो सर उसका देख लेंगे कितने एटम। जैसे CO2 की, H2O की बात कर रहा हूं, है ना। अगर आपके पास H2O के एक मॉलिक्यूल है तो टोटल एटम्स कितने हैं आपके पास, 3, ठीक है। अब H2O के 10 मॉलिक्यूल हैं तो टोटल एटम्स कितने होंगे, 50 मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या करा आपने, मॉलिक्यूल्स की नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एटम्स। मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटोमिसिटी। तो अगर मुझे मॉलिक्यूल्स को एटम्स में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स को एटम्स में बदलने के लिए आप मॉलिक्यूल्स की नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एटोमिसिटी से। आ रही मेरी बात समझ में। और वापस रिवर्स करना हो कि एटम्स को आपको मॉलिक्यूल्स में बदलना हो तो आप क्या करोगे, तब आप एटम्स की नंबर को, जितने भी एटम्स थे उसको डिवाइड कर दोगे किससे, एटोमिसिटी से, ठीक है। अब एक बार आपको मॉलिक्यूल्स पता पड़ गए तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और N मतलब न्यूट्रॉन, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये किस तरह से कैलकुलेट करोगे आप, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, है ना, मॉलिक्यूल्स की नंबर को मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। ऐसा ही सेम फॉर्मूला हमारा प्रोटॉन्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा और न्यूट्रॉन के लिए भी, है ना। तो अब हमें इस तरह का हमें पूरा करना है। ये आपका एक फ्लो चार्ट है, किस तरह से आप अब अपनी प्रॉब्लम्स को करोगे, ठीक है ना। हाँ, इस फ्लो चार्ट को बना लो। अब हमारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है ना। मास को पहले किस में बदलना पड़ेगा, मोल्स, मोल्स को किस में बदलोगे, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को किस में बदलोगे, एटम, है ना। ये तीनों थोड़े कम आते हैं बट ये ऊपर वाला चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, नंबर ऑफ एटम्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं, कोई जरूरी नहीं। नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, बट न्यूट्रॉन की नंबर तो अलग हो सकती है। और वो भी जब तक आपके पास एटम है तब तक आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर बराबर है। बट आयन होगा तो ये भी आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि आयन बनते वक्त केवल किनका एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है। और जैसे मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स comma molecules, calculate number of moles comma molecules in 200 gram of CaCO3. Calculate number of moles and molecules in 200 gram of CaCO3. फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है ना। also calculate number of atoms of calcium, carbon, oxygen, है ना। और थर्ड पार्ट है also calculate number of electron, proton and neutron। तो इस एक क्वेश्चन में हम लोग सभी चीजों को कवर कर रहे हैं। आपको 200 ग्राम CaCO3 गिवन है, उसमें आपको मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑफ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सभी निकालने। Two, number of moles, सर 12.05
4 6 अभी Na के टर्म्स में छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 इंटू क्या बोल देगा Na, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए कैपिटल लिखा कर बेटा, Na में ए कैपिटल। अलग अलग पूछे मैंने ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या है ना, देखो सबसे पहले तो आपने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 200 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ CaCO3, जो कितना हो जाएगा आपका 100। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 2, है ना। मोल्स के बाद आपको सीधे क्या निकाल लेना है, मॉलिक्यूल्स। जब तक कुछ नहीं गिवन है तब तक आप आंसर Na के टर्म्स में छोड़ दो। तो मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करना है मुझे, जितने भी मोल्स हैं बस उसे मुझे मल्टीप्लाई कर देना है किससे, Na से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 2Na, ठीक है ना। अब बात आ रही बेटा इसमें एटम्स की, अलग अलग एटम्स पूछे, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, केवल कैल्शियम का एटम अगर आपसे पूछे गए तो यू हैव टू लुक फॉर द एटोमिसिटी ऑफ कैल्शियम। एंड व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ कैल्शियम इन द कंपाउंड, 1। तो पहले तो 1 है ना। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 1। तो 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 50 में। तो 2Na में कितने होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बस उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एटोमिसिटी से। तो इट विल बी 2Na, ठीक है ना। इसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, अगर कार्बन पूछता है व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, 1 एटोमिसिटी तो 1 है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज अगेन 2Na, है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, 3, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2Na, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे कितने मेरे पास, 6Na, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, है ना। ऑक्सीजन, पहले तो कैल्शियम को देखो, कैल्शियम के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दिस इज कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, A कितना होता है 40, और Z कितना होता है इसका 20, ठीक है ना। कार्बन के लिए A कितना है आपका 12, और Z कितना है इसका 6। ऑक्सीजन के लिए A कितना है 16, और Z कितना है 8, ठीक है ना। तो अगर कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे तो कितने हो गए 20, प्रोटॉन भी कितने हो गए 20, न्यूट्रॉन क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो 40 माइनस 20 मतलब 20, है ना। अगर मैं ऑक्सीजन की बात, कार्बन की बात करता हूं तो 6 6 एंड 6। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो 8 8 और 8, ठीक है। तो ये तो किसके अंदर है, एक एक के अंदर। अब तीनों सेम है, इसमें 20 20 20 6 6 6 8 8 8। सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, है ना। तीनों सेम है इसलिए मैं एक साथ कर सकता हूं एक मॉलिक्यूल के अंदर। नाउ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 1 एटम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एक एटम है तो 20 ही रहेंगे। एक एटम है किसका, कार्बन का, तो 6 रहेंगे, प्लस 3 एटम है किसके, ऑक्सीजन। यहां जो हमने लिखा है इट इज ओनली फॉर 1 एटम। तो अगर एक एटम में 8 है तो 3 एटम्स में कितने, 3 इंटू 8, तो 20 प्लस 6 26 प्लस 24, मतलब कितना हो गया आपका 50। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। एंड मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2Na, तो इसलिए अगर मुझसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है ना, तो इट विल बी 2Na को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 50 से, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 100। इन दिस वे इट विल हैपन। ठीक है, चलो। तो एक प्रॉब्लम मैंने बेसिक आपको एक एक चीज पूरी एक्सप्लेन करने के लिए बताई है। एग्जाम में जरूरी नहीं डायरेक्ट एक एक चीज पूछे। अब मैं मिक्स जम्बल्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4।
बिल्कुल, है ना। अगेन सबसे पहले क्या निकालोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स 1.6/16 दैट इज 1/10। फिर क्या निकालोगे आप, मॉलिक्यूल्स दैट इज 1/10 इंटू Na, है ना। मोल्स को जब भी मॉलिक्यूल्स में बदलना हो बस Na से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप सीधे क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करोगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कितने 6 और हाइड्रोजन के पास 1, तो टोटल 4, 6 + 4 10, तो 10 इंटू 1/10 इंटू Na दैट इज Na। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Calculate number of atoms of carbon, hydrogen and oxygen in 6.84 milligram of sucrose. Number of atoms of carbon, hydrogen and oxygen in 6.84 milligram of sucrose. हाँ, C12H22O11, है ना। तो इस तरह से अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो बेटा, तो जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ना, आपको याद भी रखना पड़ सकता है। तो सुक्रोज इज अवर व्हाट, C12H22O11। ठीक है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। 6.84 इंटू 10 की पावर कितना, -3 डिवाइडेड बाय 342, ठीक है ना। तो ये तुमने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी बेटा। बस देखो, मैं इसे 10 की पावर -5 कर सकता हूँ, 6.84 मिलीग्राम था ना, तो 10 की पावर -3 को -5 करा। अब ये 342 का सीधे सीधे क्या है आपका, डबल। तो मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 2 इंटू 10 की पावर -5। जो तुम्हारा 1/500 आ रहा वो गलत है, ठीक है ना। इससे अब आप क्या निकालोगे अपना मॉलिक्यूल्स, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। एक आंसर अब हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 6 इंटू 10 की पावर 23 हो गया, दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर कितना, 19, ठीक है ना। अब अगर मुझे कार्बन के एटम्स निकालने हो तो कार्बन के एटम्स के लिए क्या करूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 से, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम्स निकालने होंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 22 से, ठीक है। और अगर मुझे ऑक्सीजन के एटम्स निकालने होंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 से, ठीक है। चलो एक और लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा अगला, है ना। व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन, व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन विच कंटेंट्स 2.4 into 10 power 24 atoms of hydrogen. What weight of CH4 should be taken which contains 2.4 into 10 power 24 atoms of hydrogen? है ना। अब रिवर्स क्वेश्चन हो गया। अभी तक क्या कर रहा था मैं, मास देके एटम्स पूछ रहा था, अब मैंने उल्टा कर दिया, एटम्स देके आपसे मैं मास पूछ रहा हूं। तो पूरी गाड़ी आपको किस तरह से लानी पड़ेगी, रिवर्स गियर में, है ना। पहले फ्लो चार्ट रिकॉल करो, क्या करोगे, एटम्स को पहले किस में बदलोगे, मॉलिक्यूल्स। एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कैसे बदलेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, एटोमिसिटी। फिर मॉलिक्यूल्स को किस में बदलेंगे, मोल्स। किससे डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 10 की पावर 23। फिर मोल्स को किस में बदलेंगे, मास में। कैसे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से। तो जल्दी से करके बताओ क्या होना चाहिए।
एटोमिसिटी से तो डिवाइड ही नहीं करा तुमने फिर। तो सर एटोमिसिटी तो बनी है। हाइड्रोजन के एटम से, हाइड्रोजन के एटम से तो एटोमिसिटी कितनी होगी? 4 होगी। 1 कैसे हो गई? 10 नहीं 16। CH4 है ना, 16 होगा ना, है ना। आपको सबसे पहले क्या गिवन है देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसके? हाइड्रोजन। कितने हैं? 2.4 इंटू 10 की पावर 24। इससे आप सबसे पहले क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, है ना। आपको 11th स्कूल में भी ध्यान देना है, तो स्कूल में आता है क्वेश्चन, तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको 2 नंबर में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 के लिए क्या करोगे? 2.4 इंटू 10 की पावर 24। इसको डिवाइड कर दोगे किससे? 4 से, है ना। 4 क्या है इसकी? CH4 में एटोमिसिटी। तो जैसे आप डिवाइड कर तो इट विल बी 6 इंटू 10 की पावर 23, है ना। अब जैसे आपने मोल्स मॉलिक्यूल्स निकाले, रिवर्स गियर में आ रहे हैं हम लोग। अब आप निकालोगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। तो मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कैसे बदलोगे? 6 इंटू 10 की पावर 23 को डिवाइड कर दोगे 6 इंटू 10 की पावर 23 मतलब 1, ठीक है ना। और अब आप क्या निकाल लोगे? अपना मास ऑफ CH4। तो दैट इज 1 इंटू 16 मतलब 16 ग्राम, ठीक है। तो अब ये रिवर्स टाइप के क्वेश्चन हो गया हमारे। चलो एक और लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, है ना, टू कंटेन, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 into 10 power 26, 7.2 into 10 power 26 atoms of oxygen. Calculate mass of glucose required which contains 7.2 into 10 power 26 atoms of oxygen. सबसे पहले क्या करोगे ना, आपको मैंने 7.2 इंटू 10 की पावर कितना दिया? 26। इसको आपने किससे डिवाइड कर दिया? 6 से, है ना। तो दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर 26। ये क्या हो गया? आपके मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल्स को आपने किससे डिवाइड कर दिया? 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना आपका? 200, ठीक है ना। ये क्या आ गया? आपके मोल्स। और अब आपका वेट आ जाएगा, तो वेट इक्वल्स टू 200 इंटू 180, तो हम लोग बोलेंगे 36 kg, ठीक है ना। 36,000 होगा ना, तो उसको आप 36 क्या बोल सकते हो? kg भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, calculate total number of oxygen atoms in a container which contains, calculate total number of oxygen atoms in a container which contains 110 gram of CO2, which contains 110 gram of CO2, 96 gram of ozone, 90 gram of H2O, 90 gram of H2O, 160 gram of SO3, 160 gram of SO3 and 342 gram of sucrose, ठीक है ना। एक कंटेनर में 5 चीजें आपकी मिला के रख दी है। 110 ग्राम CO2 के, 96 ग्राम ओजोन के, 90 ग्राम H2O के, ठीक है ना, 160 ग्राम ऑफ SO3 और 342 ग्राम ऑफ इसके सुक्रोज। आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ऐड करना पड़ेगा, है ना। और इस तरह की प्रॉब्लम की सिस्टमेटिक अप्रोच देखो ये होगी।
कि आप सबसे पहले चार्ट वाइज करो इसको, सब्सटेंस, ठीक है ना, उसका मास, सेकंड कॉलम उसके मोल्स जो किससे निकालोगे, इससे, थर्ड कॉलम क्या उसके मॉलिक्यूल्स, है ना, जो किससे निकालोगे N इंटू Na, और लास्ट कॉलम आपका हो जाएगा क्या, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जो किससे निकालोगे एटोमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप इस तरह से इसे सिस्टमेटिक करोगे कि आपको 5 सब्सटेंस दिए हैं मैंने, कौन कौन से, CO2, O3, H2O, SO2, SO3 और सुक्रोज C12, H22, OL, ठीक है ना। अब इनका मास कितना कितना दिया है, 110 ग्राम इसका, 96 इसका, 90 इसका, 160 इसका, 342। तो इस तरह से अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस वाली प्रॉब्लम आए ना, सिस्टमेटिक अप्रोच ये होगा, क्योंकि अदरवाइज पूरा पेज भर जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मोल्स निकाल लो, 110 को किससे डिवाइड कर दो, 44, तो दैट इज 5/2। इसके मोल्स हो गए, है ना, 96 अपॉन कितना, 48 मतलब 2। वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे, 90 को डिवाइड कर दो 18 से मतलब 5। SO3 के लिए 160 से डिवाइड कर दो 80 को मतलब 2, और सुक्रोज के लिए 342 को डिवाइड कर दो किससे, 342 मतलब कितना हो गया 1, ठीक है ना। अब अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं तो बस इसी को किससे मल्टीप्लाई करता जाऊं मैं, Na से, तो इट इज 5/2 Na, इट विल बी 2 Na, it will be 5 Na, it will again 2 Na, it will be Na। और अब एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए एटोमिसिटी, तो व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, 2, तो 2 इंटू क्या कर दो आप अपना 5/2 Na, तो इट विल बी 5 Na, है ना। ओजोन के लिए 3 इंटू 2 Na मतलब 6 Na, ठीक है ना। H2O के लिए 1 इंटू 5 Na मतलब 5 Na, है ना। SO3 के लिए 3 इंटू 2 Na मतलब 6 Na, है ना। और इसके लिए 11 इंटू Na मतलब 11 Na। तो अगर आपसे टोटल पूछे जा रहे हैं तो 5 + 6 11 + 5 16 + 6 22 22 + 12 कितना 33, ठीक है। तो इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको ऑक्सीजन के निकालने थे। तो मल्टीपल के केसेस में हमेशा प्रॉब्लम को इस तरह से अप्रोच करा करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है ना, व्हाट शुड बी द मास ऑफ what should be the mass of glucose which contains what should be the mass of glucose which contains same number of oxygen atoms as in the above problem. What should be the mass of glucose which contains same number of oxygen atoms as in the above problem. है ना। मतलब अब आपको एज्यूम करना है कि ये पूरे एटम्स किसकी वजह से आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ग्लूकोज की वजह से। अभी तो ये टोटल एटम्स कितने की वजह से आ रहे हैं मेरे, 5 सब्सटेंस की वजह से। अब अगर केवल अकेला ग्लूकोज होता, ठीक है ना, दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। नहीं सर, ये मतलब अगर इसमें 33 होंगे तो फिर चलो करो पहले आप, है ना। तो आपको ग्लूकोज का मास बताना है, ठीक है। क्या करोगे आप, नाउ दिस इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम किससे, ग्लूकोज, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है आपके लिए C6H12O6। तो आप पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल दो, मतलब 33 Na को किससे डिवाइड करोगे, 6 से, ठीक है। तो दैट बिकम्स 5.5 Na। अब आप क्या निकालोगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज,
मोल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए 5.5 Na को आप किससे डिवाइड कर दोगे? Na से। अब आप उसका क्या निकालोगे बेटा? मास। तो 5.5 को मैं 11/2 लिख सकता हूँ इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना? 180, तो इट विल बी 90, सो माय आंसर विल बी 990 ग्राम। ठीक है ना? और अच्छा क्वेश्चन बनाना होता तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि प्रीवियस मास के सैंपल से ज्यादा है कि कम है, कंपैरिजन करवा देता। अगर मैं प्रीवियस टोटल मास देखूं तो 110 प्लस 90 कितना हो गया? 200 प्लस 160 कितना हो गया? 360, 360 प्लस 96 456 एंड 456 प्लस 342 तो कितना हो जाएगा? 8, 9 और 7। सही। प्रीवियस मास कितना था? 798। क्वेश्चन को और बढ़िया बनाना होता तो ये पूछ सकता था कि ग्लूकोज का मास प्रीवियस सैंपल के टोटल मास से ज्यादा होगा कि कम होगा। करना तब भी आपको यही करना पड़ता है ना, बट एक एडिशनल चीज और करनी पड़ती, इसको सम अप करना पड़ता, फिर कंपेयर करना पड़ता कि किसका मास ज्यादा था, किसका मास कम था। ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉमनली खूब मिलेंगे शीट वगैरह में। शीट 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी बेटा कि है ना, एक के सैंपल को, एक के नंबर ऑफ एटम्स को दूसरे के नंबर ऑफ एटम्स से कंपेयर कराएगा। अब मैं डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो एक और प्रैक्टिस के लिए, है ना। व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन, व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन which contains, what mass of ethane should be taken which contains same number of hydrogen atoms, which contains same number of hydrogen atom, है ना, as in 80 gram of CH4, which contains same number of hydrogen atom as in 80 gram of CH4। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यही है, बस प्रीवियस प्रॉब्लम को मैंने ब्रेक कर करके समझाया, इसमें क्लब कर दिया है एक साथ क्वेश्चन को कि इथेन का कितना मास आपको रिक्वायर्ड होगा जिसमें हाइड्रोजन के उतने ही एटम्स हो जितने की 80 ग्राम किसके अंदर हो? CH4। देखो अब इसमें एक यूजुअल अप्रोच तो क्या है, पहले आप 80 ग्राम CH4 को किसमें बदलोगे? उसके मोल्स, ठीक है ना, फिर मोल्स को मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के एटम्स, फिर वही हाइड्रोजन का एटम किसकी वजह से हो गया? C2H6। लंबा हो जाएगा बेटा ना। अब चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो एक सब्सटेंस क्या है आपके पास? C2H6। एक दूसरा सब्सटेंस क्या है आपके पास? CH4। दोनों में आपको इक्वल क्या करना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन C2H6 को मुझे इक्वल कर देना है CH4 में, यही करना ना बेटा, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितनी है एटोमिसिटी? 6 इंटू NC2H6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NC2H6? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6, ठीक है ना। N सब्सक्रिप्ट में लिख दिया मैंने, तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6। इस नंबर ऑफ मोल्स को मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मोल्स है, मोल्स इंटू Na क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 क्या थी? एटोमिसिटी। तो ये किसके एटम्स हो गए? NC2H6 का क्या मीनिंग है? NC2H6 का मीनिंग, NC2H6 का मीनिंग, N किसका सिंबल होता है बेटा? N दो पेज टर्न करो आप। यार तुम सो रहे हो क्या कर रहे हो? अभी तक तो सब। N किसका सिंबल लिखा है तो मैंने? मोल्स का। तो ये मोल्स है और नीचे C2H6 लिखा है, दैट मीन किसके मोल्स हुए ये? तो ये मोल्स हैं, मोल्स को मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गए? किसके? अब मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गए? किसके? C2H6 मॉलिक्यूल है कि एटम है? तो फिर एटम्स ऑफ C2H6 वर्ड
करेक्ट है क्या? तो फिर क्या हो गई ये? सर हाइड्रोजन। एटम्स ऑफ किसके? हाइड्रोजन के। तो दिस इज एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी चीज को अगर मैं यहां कर दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NCH4? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इनटू इसको मल्टीप्लाई कर दूं Na से, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? एट 4 से, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CH4 H हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। इन द गिवन क्वेश्चन मुझसे यही बोला गया है कि दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है बस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका एक लाइन में हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज जो यूजुअल अप्रोच है, बुक्स में भी देखोगे आप तो आधे पेज में प्रॉब्लम भरी होती। पहले इसकी वजह से इसके मोल्स निकाले, फिर मॉलिक्यूल्स निकाले, फिर एटम्स निकाले। अब जैसे आप डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो, ये Na तो क्या हो गया आपका कैंसर, ठीक है ना? 6 इंटू इसका मास निकालना बेटा। इसके मास को मैं क्या मान लू? W अपॉन C2H। इसका मोलर मास कितना है? 30। दैट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू इसका मास कितना दिया है आपको? 80 अपॉन 16। क्या 10 क्यों लगा? 10 क्या है? बार बार 10 क्यों कर रहे हो तुम? CH4 का कितना होगा? तुम 6 प्लस 4 कर दे रहे हो, जबकि 12 प्लस 4 होगा, ठीक है ना? तो ये हो गया कितना तुम्हारा? 5। ठीक है, 4 5 ज़ा कितना? ये हो गया तुम्हारा 5। 4 5 ज़ा 20। 20 इंटू 5 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हमारा? 100 का। ठीक है ना? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें एक सब्सटेंस की वजह से और दूसरी सब्सटेंस की वजह से एक कॉमन एटम को कंपेयर करना हो, अगर आप इस अप्रोच से करोगे तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा 2 लाइनों में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? तो एक और करवाऊं इस तरह की प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा है आपको कि कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस, है ना, मतलब P4। कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस P4 रिक्वायर्ड, है ना, विच कंटेंट्स same number of phosphorus atoms as, which contains same number of phosphorus atom as in a sample, है ना, containing 98 ग्राम ऑफ H3PO4, ठीक है ना, 68 ग्राम ऑफ PH3 एंड 568 ग्राम ऑफ P4O10। Calculate weight of phosphorus P4 required which contains same number of phosphorus atoms as in a sample containing 98 gram of H3PO4, 68 gram of PH3 and 568 gram of P4O10। P4 का कितना वेट ले लूं, है ना, क्वेश्चन ये है, इसका कितना वेट ले लो आप, ताकि फास्फोरस के उतने ही एटम्स हो जितने टोटल एटम्स इस सैंपल के अंदर है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ऊपर वाले में इधर भी एक सब्सटेंस था, उधर भी एक सब्सटेंस, बस फर्क ये यहाँ पर इधर तो एक ही है, बट इधर कितने सब्सटेंस दे दिए मैंने? 3 सब्सटेंस दे दिए। प्लस होगा बिल्कुल, P4O10।
एक जगह गड़बड़ कर दी, बाकी सब सही है ना। सीधे सीधे क्या करना आपको बस, है ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस इन P4 इक्वल टू कर देना है क्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस इन किस किस के अंदर, H3PO4 प्लस PH3 प्लस P4 होते हैं, है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, थोड़ी सी बस लेवल और बढ़ गया क्वेश्चन का और अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो ये दो चीजें बस आपको कंपेयर करनी है, ठीक है ना। अब वही अप्रोच बेटा, सबसे पहले तो NP4 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4, है ना। अभी हमारा बस एक दो, कल की क्लास तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में POAC वगैरह चालू होगा नेक्स्ट वीक, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, उसमें भी ये इक्वेशन तुम्हें बार बार लिखनी पड़ेगी। तो इसको ढंग से अप्लाई करना सीखो। NP4 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 इंटू इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, Na, ये क्या हो गया, NP4 मतलब इसके मोल्स इंटू Na मतलब मॉलिक्यूल्स, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 4 से, तो ये क्या हो गया, एटम्स किसके, फास्फोरस। इधर क्या करूं, H3PO4, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4, इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, Na, और इंटू 1 प्लस अगेन NPH3 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फीन, इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे मैं, Na, और अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे मैं, 1 से, ठीक है ना, प्लस NP4O10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10 इंटू Na इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से। तो Na की तो देखो हमें कभी भी जरूरत पड़ने वाली नहीं हो, कैंसिल होना है। अब बात आ रही है यहाँ जो आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, है ना, 4 इंटू W अपॉन, ये मोल्स है बेटा, मोल्स के लिए आपको नीचे क्या रखना है, मोल्स का क्या फॉर्मूला है। मोल की प्रैक्टिस खूब जरूरी है बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, बट ना तब भी कंफ्यूजन भी हो रहा है, दैट्स वाई मैं इतने सवाल करा रहा हूँ। मोल्स में कंफ्यूजन खूब होता है। मोल्स का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो P4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 31 तो तुमने क्या रखा है, 31, तो प्रॉब्लम तो तबाह हो चुकी ना तुम्हारी, ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक गड़बड़ कर दी, बाकी सब कुछ सही है। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन आपको सही करने हैं। नीचे 31 इंटू 4 आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू 98 अपॉन 98 प्लस 1 इंटू 85 अपॉन 68 अपॉन कितना 34 एंड प्लस 4 इंटू 585 68 अपॉन 284। तो ये भी 2 हो गया आपका, ये भी 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 भी कैंसल, तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W बाय 31, ये 1 प्लस 2 प्लस 8 मतलब 9, सो W विल बी इक्वल्स टू 2, हाँ 11, तो W विल बी इक्वल्स टू 11 इंटू 31 मतलब 341 आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ, ठीक है ना। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को घर जाके फिर से रिवाइज करना, बिना देखे करना, और आज तो होम फेयर करना ही है, कल से रफ फेयर मत करना। एक कॉपी रख लेना, क्वेश्चन उसी में लिखो और रफ अटेम्प्ट के लिए सामने कर लिया करो, ठीक है। आ गया समझ में, बढ़िया क्वेश्चन है ना सभी, ठीक है। चलो कल में